Good afternoon. So this is the lecture number 96 on where we are going to discuss some conceptual concept that will help you to speak English. On here simply concept is the like. Feel like, and you have to use feel like in the sense of मन कर रहा है, दिल कर रहा है, मन करता है, दिल करता है, ओके इन द सेंस जी करता है, जी कर रहा है. लाइक इफ आई से मन करता है उससे बात करूं, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? आई फील लाइक टॉक टू हर. But you have to remember, feel like you have to use after these word either to plus V1 or V1 plus ing. If I say मन करता है कि मैं एक डॉक्टर बनूं, so I feel like becoming a doctor, or you can say this sentence in this way: I feel like to become a doctor. Okay, feel like after feel like you have to use either to plus V1 or V1 then ing form of the verb. ओके मन करता है मैं वहां जाऊं, आई फील लाइक गोइंग देयर और टू गो देयर. मन करता है तुमसे मिलूं, आई फील लाइक टू मीट यू या मीटिंग यू. मन करता है मैं उसे फोन करूं, आई फील लाइक calling her or I feel like calling him, or you can say to call her or to call him. Clear? So simply another concept is feel like, and you have to use feel like in the sense of मन करता है, जी करता है, दिल करता है, जी कर रहा है, मन कर रहा है, दिल कर रहा है. मन करता है करोड़पति बनूं, मन कर रहा है करोड़पति बन जाऊं. I feel like becoming a करोड़पति, not billionaire, becoming a billionaire. मन करता है millionaire बन जाऊं. I feel like becoming a millionaire or to become a millionaire. Okay, got it? So simply concept feel like, and you have to use in the sense of मन करता है, जी करता है, जी कर रहा, मन कर रहा, दिल कर रहा. Clear? Next concept, in the mood of. Next concept is what? In the mood of, and you have to use these concept in the sense of in the mood of means के mood में हूँ, means after this you have to use any action, you have to use in which activities that is in which you are involved. इसके बाद आपको वो लिखना है कि आप कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, की मोड में हो, खेलने की मोड में हो. मींस आफ्टर दिस यू हैव टू यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? मींस एंड यू हैव टू यूज इन द सेंस ऑफ एनी एक्शन लाइक खेलना, सोना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, गाना. ओके, इन द सेंस ऑफ के मूड में हूं, के मूड में हूं. If we are talking about presently means AJMR, then you have to use present case है हो हूं. If we are talking about was or were, then you have to use on here concept you will found था, थी, थे. Clear? If I say मैं सोने के मूड में हूं, so what is the meaning? Because मैं सोने के मूड में हूं, this sentence goes into the present case. So I am or I was? I am. So I am in the mood of sleeping. I am in the mood of sleeping. मैं सोने के मूड में हूँ. If I say मैं पढ़ने के मूड में हूँ,
then what is the meaning of this sentence? I am in the mood of studying. I am in the mood of studying. ए भाई से तुम लिखने के मूड में हो. You are in the mood of writing. मैं मोबाइल खरीदने के मूड में हूँ. I am in the mood of buying mobile. I am in the mood of buying mobile. If we have to buy any costly thing, then we have to use purchase in the place of buy. मैं लड़ने की मूड में हूँ, like गुत्थम गुत्थी type. I mean you are understanding my point. मैं लड़ने की मूड में हूँ. I am in the mood of fighting. If I say I am in the mood of quarreling, then quarreling means like virtually. झगड़ने. Yeah. So I am in the mood of quarreling. मैं सोने की मूड में हूँ. I am in the mood of sleeping. Okay, got it? चलिए यहाँ देखिए, मैं किसके मोड में हूँ? मैं जाने की मोड में हूँ. I am in the mood of go. I am in the mood of going. Going. Yeah, अच्छा, going I am. because you have to use ing form of the first form of the word. क्लियर है? ये चीज आपका हो गया सिंपल से यहाँ पर. अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है आपका, तीसरा नंबर, वो आता है आपका सपोज. देखिए सिंपल सा छोटा है. सपोज मीन्स क्या होता है? मान लो, है ना? या जो है इसको यूज किया जाता है सपोज डैड के रूप में. सपोज डैड. या आप यहां पर यूज कर सकते हैं एज्यूम. आप यहां पर यूज कर सकते हैं Assume. एज्यूम करो, इस तरह से, है ना? तो इसकी जगह पर जैसे मैं कहूं, मान लो यह एक घड़ी है. सपोज डैड दिस इज अ वॉच. एज्यूम करो कि ये एक घड़ी है. Suppose है ना? that. तो एज्यूम या सपोज डैड. मैं कहूं मान लो यह एक घर है. सपोज डैड दिस इज अ हाउस. मान लो यह एक किताब है. सपोज डैड दिस इज अ बुक. मान लो यह एक मोमबत्ती है. सपोज डैड दिस इज अ कैंडल. मान लो तुम एक लड़की हो. सपोज डैड यू आर अ गर्ल. देखिए सिंपल सा छोटा कॉन्सेप्ट है. जैसे यहाँ मैं कहूं, मान लो कि यह एक सिनेमा घर है, तो क्या हो जाएगा? सपोज डैड दिस इज अ सिनेमा हाउस. सपोज डैड दिस इज अ सिनेमा हाउस. मान लो यह एक सिनेमा घर है. क्लियर है? ये चीज आपका हो गया. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, और वो है आपका हैविंग टू. वो क्या है? हैविंग टू. अब देखिए हैविंग टू का यूज आपको करना है इन द सेंस ऑफ करना पड़ रहा है. करना पड़ रहा है ना? इसके सेंस. अच्छा है हो हूं की बात हो तो आपको यूज करना है इज एम आर करना है. ठीक. और यहां करना का मतलब कोई काम, एक्शन. जैसे मैं कहूं मुझे वहां जाना पड़ रहा है, मीन्स दिस सेंटेंस शोज अ कंपल्सन. दिस सेंटेंस शोज अ कंपेल. ये सेंटेंस एक कंपल्सन को शो करता है, नेसेसिटी को शो करता है. क्लियर है? कंपल्सन मीन्स जरूरी, नेसेसिटी मीन्स भी होगा जरूरत. क्लियर है? या एक फोर्सनेस को शो करता है, मजबूरी को भी शो करता है. क्लियर है? जैसे मुझे वहां जाना पड़ रहा है, सो आई एम हैविंग टू गो देयर. मुझे वहां जाना पड़ रहा है, यानी कि हैविंग टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. अगर प्रेजेंट की बात हो तो इज एम आर लगाना. पास्ट की बात हो था थी थे लगाना. मुझे जल्दी आना पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? आई एम हैविंग टू कम अर्ली. मुझे तुम्हें समझाना पड़ रहा है. आई एम हैविंग टू एक्सप्लेन यू. मुझे तुमसे मिलना पड़ रहा है. आई एम हैविंग टू मीट यू. मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है. आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश. इस तरह से आपका हो गया. एक और देखते हैं इसके बाद का, यानी कि लेक्चर नंबर 97 में. अब मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको यहां पर बुलाऊंगा और मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि हैविंग टू का यूज आपको करना है
करना पड़ रहा, इस तरह से जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं एक सिखाऊंगा और उस पर 6-7 सेंटेंस में पूछूंगा, आपको बताना है। क्योंकि देखिए ये 96 लेक्चर नंबर है। अब लास्ट में क्या है, आपको कॉन्सेप्ट से ज्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करना है, थोड़ा सा अपना एक समझो 10 बताने का ट्राई करना है। क्लियर है? अभी यहाँ पर एक मैं और करवाता हूँ, इसके बाद में फिर नेक्स्ट में मैं यही करवाता हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर एक कहानी है अबाउट टू की कहानी। क्लियर है? अबाउट टू की कहानी है। अब अबाउट टू का यूज एक्चुअली करना है वाला, वाली, वाले के सेंस में, या ही वाला, ही वाली, ही वाले के सेंस में। अगर प्रेजेंट की बात हो यानी कि वाला है, वाली है या वाले हैं की बात हो प्रेजेंट केस में, तो आप इसके पहले क्या लगाओगे? इज, एम, आर लगाओगे। अगर इसी को पास्ट केस की बात हो यानी कि वाला था, वाली थी, वाले थे, अगर ये चीज पास्ट केस में बात हो, वाला था, वाली थी, वाले थे, तब वहां पर आप क्या लगाओगे? वाज या इजेमार के प्लेस पर क्या लगा दोगे? वाज या वर लगा दोगे। अगर फ्यूचर की बात हो तब क्या लगा दोगे? बिल, है ना? क्या लगा दोगे? बिल या तो सर। अभी मैं 2 चीज को लेकर चल रहा हूं, या एक समझ में आ जाएगा, बाकी तो क्लियर ही हो जाएगा ना। जैसे मैं कहूं मैं खेलने वाला था, पास्ट में है, तो वाज या वर में जाओगे तो क्या हो जाएगा बताइए? आई वॉज अबाउट टू प्ले हो जाएगा। मैं सोने वाला था। देखिए यहां पर एक्चुअली ये प्लानिंग के लिए होता है। प्लानिंग 2 तरह का होता है, प्लानिंग और एक इंस्टेंट प्लानिंग। जैसे मैं सोने वाला था, आई वॉज अबाउट टू स्लीप, मैं सोने ही वाला था। जैसे वहां ही लगा वैसे आपको यहाँ जस्ट लगा देना है। I was just about to sleep। नहीं समझे? देखो अगर यहाँ प्लानिंग है ना, अगर यहाँ पर नॉर्मली प्लानिंग है तो आपको ये चीज, लेकिन अगर प्लानिंग आ जाता है इंस्टेंट प्लानिंग, है ना, इंस्टेंट प्लानिंग यानी कि तुरंत। क्लियर है? जैसे मैं सोने ही वाला था, तो वहां पर जस्ट अबाउट टू का यूज आपको करना है। जस्ट अबाउट टू का यूज। मैं जाने ही वाला हूं, देखिए दोनों में अंतर भी है, हिंदी के भी सेंस में। देखिए मैं जाने वाला हूं, आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला हूं, इसका मतलब तुरंत जाने वाला हूं। आई वॉज जस्ट अबाउट टू गो, बोथ आर डिफरेंस। क्लियर है? इतना समझ में आया? जैसे मैं आपसे कहूं मैं फोन करने ही वाला था, क्या होगा? आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल। मैं कहने ही वाला था, आई वॉज जस्ट अबाउट टू से। मैं सोने ही वाला था, आई वॉज जस्ट अबाउट टू स्लीप, है ना। अगर मैं कहूं मेरे पास बात करने का समय नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट हैव टाइम टू टॉक, है ना। तुमसे, मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक टू यू। ये कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही रखा जा रहा है। इतना समझ में आया? एक बार रिवीजन करो या क्लियर है? आई होप दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। फील लाइक का यूज करना है। मन कर रहा है, अब आप देखो क्या क्या मन कर रहा है, क्या क्या जी कर रहा है। मन कर रहा है मिठाई खाऊं, मन कर रहा है रसगुल्ला खाऊं, आई फील लाइक ईटिंग रसगुल्ला। मन कर रहा हूं उसे मारूं, मन कर रहा है किसी को पीटूं। बहुत मन करता है ना कभी कभी, तो यार मन कर रहा है किसी को मारूं भाई, बताना यार, कहीं किसी को मारना होगा तो बताना, फोन करना, मैं आ जाऊं। तो आई फील लाइक टू बीट समवन, इस तरह से आप बनाओ कैसे क्या करना है। क्लियर है? आज के लिए इतना रखते हैं। आपका 4 कॉन्सेप्ट है। फील लाइक मन कर रहा है, दिल कर रहा है, जी कर रहा है, मन करता है, दिल करता है, जी करता है। इन द मूड ऑफ मीन्स के मूड में हो, जिसके भी मूड में, इन द मूड ऑफ ईटिंग, इन द मूड ऑफ ड्रिंकिंग, इन द मूड ऑफ प्लेइंग, इन द मूड ऑफ रीडिंग, इन द मूड ऑफ राइटिंग, है ना, व्हाटएवर। और यहाँ सपोज या सपोज डेट या एज्यूम इसका यूज करना है आपको, मान लो के सेंस में। और हैविंग टू का यूज करना पड़ रहा है, जैसे मुझे वहां जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो देयर। और इज, एम, आर, अबाउट टू का यूज आपको करना है। वाला है, वाली है, वाले, लेकिन अगर ही वाला है का सेंस आ जाए, इंस्टेंट प्लानिंग की बात हो, तो वहां पर आपको जस्ट अबाउट टू का यूज कर देना है। क्लियर है इतना? ओके।